Hello students, welcome you all. Dear students, today we are going to talk about chapter on political parties of democratic politics from class 10th. And this is very important chapter for examination point of view. So let's have a look over the chapter. Before proceeding towards the chapter, I want to tell you all that after having studied this chapter, you will be able to know that what are the political parties, okay, what are political parties, what are the necessities of the political parties, okay, necessities of the political parties. Then after you will be also able to know what are the functions of the political parties, clear, functions of the political parties, and the national and the state level parties, okay, national and state level parties. Then after you will be also able to know that what which are the major national parties of India, major national parties of India. And in the last we will look about what are the major challenges faced by the political parties. Okay, so let's have a look over this chapter. जो हिंदी में मैं आपको बता दूं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पढ़ने के बाद से इस चैप्टर को जब हम पढ़ लेंगे तो हमें ये सारी चीज़ें पता हो जाएंगी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं, इनकी हमें आवश्यकताएं क्या क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या कार्य पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रही होती हैं, नेशनल लेवल की और फिर स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, भारत में जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। साथ ही साथ में जो चैप्टर का लास्ट होगा, लास्ट चैप्टर, in the last part of the chapter we will look about the challenges faced by the major political parties. Okay, so let's have a look over the chapter. Dear students, first of all we should know that what is a political party. पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हम किसे पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं. सो here a political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government. What? Political party is a group of people who come together to contest election. Okay, contest election and hold power in the government. Okay, hold power in government. Clear? What is political party? Political party is a group of people, clear, who come together to contest election. Political party क्या है? वो ग्रुप ऑफ पीपल्स है, लोगों का वो समुदाय है जो एक साथ मिल करके चुनाव लड़ते हैं और साथ ही साथ में सरकार में अपनी जो सरकार की शक्ति है उसमें अपनी होल्डिंग रखते हैं. क्लियर? और ऐसे लोग जो दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद ए व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड. ओके, ये सभी लोगों के ओपिनियंस एक जैसे होते हैं और ये सारे लोग एक साथ मिल करके जो समाज के लिए जो अच्छा हो सकता है, दैट कैन बी बेटर फॉर द ह्यूमैनिटी एंड दैट कैन बी बेटर फॉर द सोसाइटी, दे मेक सम सच पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स. क्लियर? ये लोग क्या करते हैं, ये कुछ ऐसी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाते हैं जो समाज के लिए एक कलेक्टिव व्यू में क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि समाज के विकास के लिए वो बेहतर होता है. मीन्स दे प्रोवाइड अ वे एंड मीन्स टू मेक द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड इट्स पीपल. क्लियर? Political party is a group of people. Once more, let's have learn it everyone. Political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. One more point you can add there, that they agree on some policies and programs for the society. ओके, वो लोग किसी पॉलिसी पर और किसी प्रोग्राम पर सहमत होते हैं, एक प्रोग्राम पर सहमत होते हैं फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए, विद द व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड. ठीक है, पूरे समाज का विकास हो
पूरे समाज का उत्थान हो, ऐसा वो व्यू रखते हैं, ऐसी विचारधारा रखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ मूविंग अहेड, yes, there is the major question, what is the ruling party? So dear students, about the ruling parties, it has been said that a government is expected to base on its policies on the line taken by the ruling party. So dear students, ruling party is that party which is currently running the government. Okay, a ruling party refers to the party which is running the government. Okay, ruling party refers to the party which is रनिंग द गवर्नमेंट। क्लियर? जो पार्टी सरकार चला रही होती है उसको हम रूलिंग पार्टी बोल रहे होते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस रूलिंग पार्टी, इट हैज़ ऑलरेडी प्रूव्ड इट्स मेजॉरिटी इन द जनरल इलेक्शन। ओके, जनरल इलेक्शन, ये पार्टी बच्चों जनरल इलेक्शन में अपनी मेजॉरिटी पहले से ही प्रूव कर चुकी होती है, सो दैट वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और फिर गवर्नमेंट फॉर्म करने के साथ साथ में गवर्नमेंट को रन भी कर रही होती है। तो ऐसी पार्टी को हम रूलिंग पार्टी बोलते हैं। ओके, नाउ मूविंग अहेड, स्टूडेंट्स, now we will talk about the components of the political parties. Okay, components of the political parties. So dear students, there are three components of the political party. One are the leaders. Okay, leaders. Then after the active members. Okay, active members, and the last the followers. Okay, followers. So these are the three components of the political party. ओके, बात समझ में आ रही सभी को? पॉलिटिकल पार्टी के तीन कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? लीडर, एक्टिव मेंबर एंड फॉलोवर। ओके, इज दैट क्लियर? पॉलिटिकल पार्टीज हैव थ्री कंपोनेंट्स, वन इज द लीडर, अनदर इज द एक्टिव मेंबर, एंड थर्ड इज द फॉलोवर। ओके, now there is a term that I want to tell you, partisanship. Okay, partisanship. Dear students, to favor any party or to support any party is known as partisanship. किसी भी पार्टी का सपोर्ट करना, किसी भी पार्टी की तरफदारी करना, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टीसनशिप बोलते हैं। ओके, now we will move to the next topic, that is the functions of the political parties, that what the real political parties really do. Okay, अब हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन क्या क्या हैं, किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या क्या करती हैं, हम उसके बारे में टॉक करेंगे। ओके, स्टिल वंस मोर आई वांट टू रिवाइज यू ऑल। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज, देन आई हैव टोल्ड यू that political parties refers to the group of people. Okay, political party refers to the group of people who come together to contest election and hold power in the government. Okay, and then after we have talked about the components of the political parties. There are three components of the political party: the leaders, active members, and the followers. You know, leaders, they lead the political party. Then after the active members, they promulgate the principles of the parties, and the followers support the political party. Okay, now the next topic is the functions of the political parties. So look, have a look over here. देखिए, parties contest elections. Okay, first function is parties contest election. This is the most important question, dear students, from this chapter. There is the maximum probability
ऑफ दिस क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द functions of the political parties, then at least you have to learn the 5 political functions of the political parties. Okay, what are the functions of the political parties? पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन क्या होते हैं आपको ठीक से याद करके रखना होगा। ओके, सो पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, द फर्स्ट फंक्शन इज पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। ओके, नाउ सेकेंड फंक्शन इज पॉलिटिकल पार्टीज फॉरवर्ड different policies and programs and the voters choose from them. ओके, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ ले आती हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स लाते हैं और फिर वोटर्स उन्हीं के बिहाफ पर इन्हें क्या करते हैं, चूज करते हैं। ओके, ईच ऑफ अस हैव मेनी डिफरेंट ओपिनियंस and views on what the policies are suitable for the society, but no government can handle such a large variety of the views. In a democracy, a large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by the government. This is what the political parties do. Okay. बच्चों, अगर हम बात करें किसी भी डेमोक्रेसी की, तो there are different kind of people, mass of the population. Okay, mass of the population have the different opinions, so how it could be possible that all the opinions and the views will be followed? Okay, so then it is necessary that there must be any single policy that could be adopted by all. Okay, अगर हम किसी प्रजातंत्र की बात करें तो वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, सबके अपनी ओपिनियंस होते हैं, अपने व्यूज़ होते हैं, तो कौन सी जो पॉलिसी होगी बच्चों वो सबके लिए सूटेबल होगी, इसको कौन डिसाइड करेगा? तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस कंडीशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, किसी भी पॉलिसी और प्रोग्राम को शेप करती हैं और गवर्नमेंट उन्हीं पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के बिहाफ पर वर्क करती है। क्लियर? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन, ठीक है, लोग सिटीजन इलेक्ट करते हैं, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो मेजॉरिटी में होती है उसी की पॉलिसीज़ को आपको पता है इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि उसको मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्रीफर करती है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल और लोग उसको चूज़ करते हैं। ओके, हियर द टर्म पार्टीशनशिप हैव बीन एक्सप्लेन्ड, सो लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। A person who is strongly committed to a party, group or fraction. Partisanship is marked by a tendency to take a side or inability to take balanced view on the issues. ठीक है, पार्टीशनशिप का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यक्ति जो किसी पार्टी को लेकर के कमिटेड होता है, ठीक है, किसी भी मीन समुदाय को लेकर के वो बहुत ज़्यादा कमिटेड होता है कि वो उसी की बात को सुनेगा, ठीक है, और उसके पास में ये मीन्स कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो एक बैलेंस्ड व्यू रख सके, सबको एक समान दृष्टि से देख सके, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टीशनशिप बोलते हैं। ठीक है, ये पार्टीशनशिप का मतलब होता है। ओके, टू हैव द इनेबिलिटी ऑफ अनबैलेंस्ड, टू हैव द इनेबिलिटी ऑफ बैलेंस व्यू ऑन एनी इशू। ओके, मूविंग अहेड, third function of the political party. Parties play a decisive role in making laws for the country. Formally, laws are debated and passed in the legislature. Okay, क्या होते हैं? पार्टी क्या करती हैं, अपना एक निर्णायक रोल प्ले करती हैं किसी भी लॉ को बनाने में। देश के लिए जो जब भी कोई रूल बन रहा होता है तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज एक मेजर रोल प्ले करती हैं। Formally, laws are debated and passed in the legislature, but since most of the members belong to a party, then they go by the direction of the party leadership, irrespective of their personal opinion. ओके, ये क्लियर है सभी को? यहाँ पर ये बताया गया कि क्योंकि जब लेजिस्लेचर में किसी भी पॉलिसी पर डिबेट हो रहा होता है, तो कोई भी पॉलिसी जब डिबेट की जाती है, क्योंकि इसको किसी पार्टी के एक मेंबर ने लाया,
अगर इसे किसी मेजॉरिटी पार्टी के मेंबर ने ले आया है तो जितने भी उसके फॉलोवर्स होंगे सारे लोग उसको सपोर्ट करेंगे, तो इस वे में वो रूल कंट्री के लिए बन रहा होता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पार्टीज़ को तो हम लोगों ने इलेक्ट किया है और जिस पार्टी की मेजॉरिटी है वो मेजॉरिटी पार्टी के लोग ही किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी पार्टी का मेंबर किसी एक डिसीजन को कैरी ऑन करता है तो हर कोई उसी को फॉलो करता है। ओके, सो पार्टीज play a major role in making the laws. Third function is parties play a major role or decisive role in making the laws for the country. Next one is parties form and run the government. Okay, parties form and run the government. As we noted last year, big policy decisions are taken by the political executive that comes from the political parties. Okay, political parties recruit leaders, train them and then make them ministers to run the government in the different way they want. Okay, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो उनको या लीडर्स होते हैं उनको रिक्रूट करती हैं, उनको ट्रेन करती हैं और फिर उनको वो सारी मिनिस्ट्रीज प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट की जहाँ पर वो उनको चाहते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं और उसको रन भी करती हैं। द नेक्स्ट फंक्शन इज दोज पार्टीज that lose in the election play the role of opposition party. This is the most important point, dear students, you must know about it. For a better democracy it is necessary that there must be the opposition party. Okay, अगर एक अच्छा लोकतंत्र है, एक अच्छी सरकार है और एक अच्छी पार्टी है तो वहाँ पर अपोजिशन पार्टी का होना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज द अपोजिशन पार्टी voice different views and criticize the government for its failures and wrong policies. क्या होता है, जब कभी कोई भी रूलिंग पार्टी कोई ऐसी पॉलिसी लेके आती है जो समाज के लिए बेकार होता है, ओके, दैट इज़ नॉट बेटर फॉर द सोसाइटी, एंड इफ़ देयर इज़ एनी फेलियर ऑफ द रूलिंग पार्टी देन दिस अपोजिशन पार्टी रेजेस वॉइसेस। ठीक है, ये जो अपोजिशन पार्टी होती है ये क्या करती है, वहाँ पर वॉइस अरेज करती है, मतलब आवाज़ उठाती है कि आपने ये प्रॉमिस किया था इलेक्शन कैंपेन में और आपने अपने उस प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं किया। या फिर अगर कोई रूलिंग पार्टी कभी कोई ऐसी रॉन्ग पॉलिसी लेकर के आती है जो सोसाइटी के लिए उतना बेटर नहीं होता, तो फिर वहाँ पर उस गवर्नमेंट की, उस रूलिंग पार्टी की क्रिटिसिज्म भी अपोजिशन पार्टी कर रही होती है। ओके, नेक्स्ट इज़ द पार्टीज शेप द पब्लिक ओपिनियन. They raise and highlight the issues. Parties have lakhs of members and activists spread all over the country. ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, जो पब्लिक की ओपिनियन होती है उसको एक से प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो पब्लिक की डिमांड होती है, जो उनकी इश्यूज़ होते हैं उसको वो रेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनके जितने भी मेंबर्स हैं ये पूरे कंट्री में स्प्रेड होते हैं, एंड मेनी ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स आर द एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ among different sections of the society. Parties sometimes also launch movements for the resolution of the problems faced by the people. Often, opinions in the society crystallize on the line of the parties take. तो यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ये लोगों के जितने भी इशू होते हैं, उनके डिमांड्स होते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। ये अपने जितने एक्टिव मेंबर्स होते हैं उनके थ्रू इस काम को मीन्स जो लोगों की मांग होती है, लोगों की जो इश्यूज प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। ओके, और कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, कोई ऐसे मोमेंट भी लॉन्च करते हैं जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे होते हैं। क्या होता है, कभी भी देखिए जब रूलिंग पार्टी कोई ऐसी जो गवर्नमेंट रन कर रही होती है, अगर कोई ऐसी पॉलिसी वो लेके आ रही है जो सोसाइटी के लिए उतना बेटर नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो कुछ ऐसे मीन्स वॉइसेस रेज करती है कि लोगों को कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, उनको इस रूल से क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो लोगों के ओपिनियन को वो एक शेप प्रोवाइड करती है। क्लियर? पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, जो ये एक ऐसे भी मशीनरी के रूप में वर्क प्रोवाइड करती है, मीन्स एक ऐसा भी टास्क करती है कि लोगों की जो मीन्स एसेसिबिलिटी है वो गवर्नमेंट तक हो सके। ओके, पार्टीज प्रोवाइड
पीपल असेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स, लोगों की जो पहुँच हो वो जो सरकार की मीन्स स्कीम्स है उसको वो ठीक से एसेस कर सकें, ठीक है, इसके लिए भी वो वर्क कर रही होती है। फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज़ ईजी टू अप्रोच टू अ लोकल पार्टी लीडर दैन ए गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी लोकल लीडर के पास में लोग आसानी से पहुंच जाते हैं, ठीक है, और उससे अपनी सारी बातों को कह सकते हैं, ठीक, एंड दैट इज़ वाई दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट fully trust them. Parties have to be responsive to the people's need and demands, otherwise people can reject those parties in the next election. तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग जितने भी लोकल लीडर्स होते हैं, लोकल लीडर्स के पास में अपनी भी प्रॉब्लम्स को लेकर के आसानी से पहुँच जाते हैं, ना कि वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जा रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि ये ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर होते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनको रिस्पॉन्सिव भी होना पड़ता है। अगर वो नहीं रिस्पॉन्सिव होंगे जो लोगों की डिमांड है उसको लेकर के, ठीक है, उनकी ज़रूरतों और डिमांड्स को लेकर के, तो फिर लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में फिर उनको इलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं लोगों की जो भी डिमांड्स है, जो भी उनकी नीड्स हैं उसको वो रिस्पॉन्स करते हैं। ओके, सो इन दिस वे वी हैव सीन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़। ओके, firstly we have seen the political parties contest election. Okay, political parties contest election, it was the first function of the political party. Secondly we have seen political parties form and run the government. Okay, form and run the government. Political parties make a play a decisive role in law making, and we have also seen they shape the public opinion. Okay, shape the public opinions. In this way we have seen what are the major functions of the political parties. Now we will talk about what are the necessities of the political party. Okay, the list of the functions in essence answered to the question asked above. We need political parties because they perform all these functions. ओके, क्योंकि अगर आप बात करें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेसेसिटी क्यों है, तो सबसे अच्छा जो इसका एग्जांपल है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो फंक्शंस हैं, जो भी काम ये कर रही होती हैं, यही इनका आंसर हो जाता है। बट वी स्टिल नीड टू आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। ओके, वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ बाई इमेजिनिंग सच ए सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। ओके, अगर हम कभी ये बात करें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेसेसिटी क्यों है, इवन वी हैव सीन दैट द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ आर मच इम्पोर्टेंट। ओके, बट येट इफ वी टॉक अबाउट व्हाट कुड हैपन इफ देयर विल बी नो पॉलिटिकल पार्टी इन ए डेमोक्रेसी, ठीक है, अगर हम ये बात करने लग जाएं कि किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो फिर वहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर क्या हो सकता है, तो उस पर अगर हम बहस करें तो इसका जो सबसे बेटर कंडीशन होगा कि हम एक ऐसी सिचुएशन को इमेजिन करें जहाँ पर पार्टी ना हो, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या, जब भी चुनाव होगा तो वहाँ पर हर एक कैंडिडेट क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर, इंडिपेंडेंट होगा। तो जब इंडिपेंडेंट होगा सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट देयर मेजर पॉलिसी चेंजेस। The government may be formed, but its utility will remain ever uncertain, है ना, कि वो कोई ऐसी बड़ी पॉलिसी चेंजेस के लिए कोई प्रॉमिस नहीं कर पाएगा कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, अकेला व्यक्ति है, और आप जानते हैं किसी भी डेमोक्रेसी में बिना मेजॉरिटी के कुछ हो नहीं सकता है ना। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी स्टैंड फॉर मेजॉरिटेरिज्म। ओके, मीन्स यहाँ पर प्लूरलिटी एग्जिस्ट करती है, प्लूरलिटी के बिहाफ पर ही गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी रन करती है। तो कोई एक अकेला जो इंडिपेंडेंट लीडर होगा वो कोई भी मेजर पॉलिसी चेंजेस नहीं कर सकता है। तो फिर इस तरह से जो सरकार बनेगी तो उसकी क्या होगी, जो यूटिलिटी होगी वो हमेशा अनसर्टेन रहेगी, मतलब वो हमेशा अनिश्चितता के मीन्स सिचुएशन में रहेगी, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में रहेगी, वो कोई भी मेजर पॉलिसी चेंजेस नहीं कर सकेगी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी अकाउंटेबल टू दियर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, ठीक है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड होगा
वो सिर्फ और सिर्फ अपने उस लोकेलिटी में, अपने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि वहाँ पर वो क्या कर सकता है, बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, तो सिर्फ वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का टेक केयर कर सकता है ना। पूरी कंट्री को कौन रन करेगा, पूरी कंट्री के लिए कौन कौन से प्रोविज़न, कौन कौन से रूल होंगे, उन पूरी कंट्री की जो प्रॉब्लम है वो कैसे दूर होगी, या लोगों की नीड्स कैसे फुलफिल होगी, ये कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट हो, मीन्स किसी भी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी ना हो, इफ़ देयर इज़ नो पॉलिटिकल पार्टी इन ए कंट्री, देन इट विल बी द मेजर प्रॉब्लम दैट हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल कंट्री, हु विल बी अकाउंटेबल फॉर द होल कंट्री। ओके, नेक्स्ट we can also think about it by looking a non-party based election to the panchayats in many states. Although parties do not contest formally, it is generally noticed that the village get split in more than one faction, each of which put up a panel to its candidate. This exactly what the parties that does. That is not reason we find political parties in almost countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or डेवलपिंग। ओके, तो यहाँ पे बताया गया, अगर हम पंचायतों की बात करें, ठीक है, इफ़ वी टॉक अबाउट द पंचायत, तो पंचायत के इलेक्शन में क्या होता है, वहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंटली होता है, नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन होता है। आपको पता है पंचायत में तो कोई पार्टी का सिस्टम होता नहीं, वहाँ पे हर एक जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका इलेक्शन क्या होता है, इंडिपेंडेंटली होता है। तो पूरे विलेज में क्या होता है, जब कभी ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायतों का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव हो रहा होता है, तो पूरा गांव छोटे छोटे पार्ट में क्या होता है, डिवाइडेड हो जाता है। दैट दिस इज माई पार्टी, दिस इज माई पार्टी, दिस इज माई लीडर, आई विल सपोर्ट दैट लीडर। ओके, इन दिस वे द होल विलेज इज फैक्शन, इन द होल विलेज इज डिवाइडेड इन स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स। ओके, पूरा जो गांव समाज होता है, गांव हो रहा होता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक इंडिपेंडेंट लीडर मीन्स वो क्या होता है, इलेक्शन को कंटेस्ट करता है, और लोग फिर उसको सपोर्ट करने के लिए मीन्स एक पार्टीशनशिप का रोल प्ले करते हैं, है ना। तो इस तरह से पूरा गांव क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होता है। इसी तरह से अगर किसी भी डेमोक्रेसी में कोई मीन्स पॉलिटिकल पार्टी ना हो, तो क्या होगा, बहुत सारे इंडिपेंडेंट लीडर हो जाएंगे, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट लीडर होंगे तो इंडिपेंडेंट ओपिनियन होंगे, और पूरी सोसाइटी में डिसयूनिटी और डिसइंटीग्रिटी आ जाएगी, पूरे हर कोई एक पार्टी को सपोर्ट करने लगेगा। ओके, सो देयर इज़ द नीड of a political party to have the collective opinion to share the common interest of the people. Okay, this rise of political parties directly linked to the emergence of the representative democracy. As we have seen, large societies need representative democracy. As societies became large and complex, they also needed some agency to gather different views on the various issues and to present these to the government. तो हमने पहले ही बताया कि अगर हम किसी एक बड़े समाज की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक ऐसे एजेंसी की ज़रूरत होती है, एक ऐसे पार्टी की ज़रूरत होती है कि जो लोगों के वेरियस इशूज़ हैं उनको गैदर करें और फिर गवर्नमेंट के पास में उसको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक पार्टी की ज़रूरत पड़ जाती है, और दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, दे नीडेड some ways to bring various representatives together so that responsible government could be formed. They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them. Political parties fulfill the needs that every representative government has. We can say that parties are the necessary condition for the democracy. इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये किसी भी प्रजातंत्र के लिए, किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किसी भी लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना इनके हम ना तो कोई मीन्स गवर्नमेंट पर सपोर्ट ला सकते हैं, ना तो कोई मीन्स उस पर रेस्ट्रेन कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ना तो हम किसी भी गवर्नमेंट का अपोज कर सकते हैं। सो देयर मस्ट बी ए पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेसी। ओके, मूविंग अहेड, dear students, now we will talk about the party system in the present democracy. Okay, so first of all I would like to tell you that party system stands for how many types of political parties existing in a democracy. Okay, so there may be single party system, okay, single or one party system in any country, or there may be bi-party system. Okay, bi-party system means two party system, or there may be the multi-party system.
ओके, मल्टी पार्टी सिस्टम। किसी भी देश में ये किसी भी लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। वहाँ पर कोई एक पार्टी रूल कर सकती है, या फिर वहाँ पर कोई दो पार्टी रूल कर सकती हैं, ठीक है, या फिर वहाँ पर मेनी पार्टीज रूल कर सकती हैं, मेनी पार्टी एग्जिस्ट कर सकती हैं। ओके, सो इट क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी भी डेमोक्रेसी में सिर्फ एक ही पार्टी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल पार्टी सिस्टम बोलते हैं। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना। ओके, चाइना चाइना हैज़ द सिंगल पार्टी, दैट इज़ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। हमने आपको बताया कि किसी भी लोकतंत्र में तीन तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं, तीन में से कोई भी, मीन्स वहाँ पे या तो सिंगल पार्टी सिस्टम हो सकती है, ओके, या फिर वहाँ पर बाई पार्टी सिस्टम हो सकता है, या फिर वहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम हो सकता है। ओके, मल्टी पार्टी सिस्टम हो सकता है, या फिर नॉन पार्टी सिस्टम भी हो सकता है, वहाँ पर कोई भी पार्टी नहीं है, नॉन पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम स्टैंड्स फॉर सच ए डेमोक्रेसी हैविंग वन party. You can write it in your notes. Single party system stand for such a democracy where only one party is responsible for contesting the election and forming the government. Bi-party system, such a democracy where two political parties exist. And multi-party system stand for such a democracy having more than two political parties. Okay, non-party system stand for there is no party for this purpose. Okay, so let us take the example one party system in contemporary democracy or today's democracy. There is the China. Okay, China has the single party, that is Communist Party of China. Okay, CPI, Communist Party of China, is the only party of China responsible for contesting election and forming the government. Then coming to the bi-party system. Okay, coming to the bi-party system. Bi-party system actually stands in bi-party stands in UK, that is the United Kingdom, and also USA. ओके, यूएसए और यूके में क्या है? बाई पार्टी सिस्टम है, मीन्स दे हैव ओनली टू पार्टीज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन. एंड देन इफ वी टॉक अबाउट मल्टी पार्टी सिस्टम, देन इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम. ओके, इंडिया हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम. यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज़ हैं और वो रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए और गवर्नमेंट फ्रेम करने के लिए. ओके, now if we will talk about the recognition of the political parties, then Election Commission of India, because we are talking about the democratic politics of India, so we will talk about the Indian democracy, Indian political parties. So in India there may be two levels of political parties as per recognition provided by the Election Commission of India. Okay, my dear students, I want to tell you here that in India, Election Commission is the supreme body, supreme organization that is responsible for taking decision regarding to the election. Okay, so there are two types of Election Commission. One is the Election Commission of India. Okay, Election Commission of India. Another is the State Election Commission. Okay, State Election Commission is responsible for conducting elections and taking all major decisions regarding the election in state only. Okay, in state only. And Election Commission of India is responsible for taking all major decisions and conducting election for the national level, that is the central level. Okay, so if we will talk about the recognition of the political party, then as per Election Commission there may be the national party. Okay, there may be the national party and one there may be the state party. ओके, स्टेट पार्टी. अभी हमें सिर्फ इन दो को पढ़ना है. ये दो तरीके की पॉलिटिकल पार्टी हो सकती हैं. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या तो वो नेशनल लेवल की हो सकती है या फिर वो स्टेट लेवल की हो सकती है. ये कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ओके, नाउ लेट्स हैव ए लुक ओवर द नेशनल पार्टी. कंडीशंस टू बिकम अ नेशनल पार्टी. See here,
a party that secures at least 6% of total vote in an election. Okay, for national party and state level party, there are some conditions to be fulfilled by the parties to become a state or national level party. So as per election commission, a party that secures at least 6% of total votes in an election to the legislative assembly of state and wins at least 2 seats is recognized as state party. ओके, इलेक्शन कमीशन के अनुसार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो 6% वोट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सिक्योर करती है, ओके, और साथ ही साथ में 2 सीटें वो 2 सीट्स वो अपनी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत रही होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट लेवल की पार्टी। ओके, क्या कंडीशंस है? इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गई सभी को? There are 2 conditions to be fulfilled to become a state level party, and first one is to secure 6% of the total vote value of state legislative assembly election, and second to win at least 2 seats of the state legislative assembly. Then this party is known as state level party. बात समझ में आ गई? एक बार हिंदी में समझ लीजिए कि कोई भी पार्टी अगर वो 6% वोट विधानसभा की जीतती है, ठीक है, 6% वोट वो विधानसभा के चुनाव में वो एक सिक्योर करती है और साथ ही साथ में 2 सीटें भी विधानसभा की जीतती है, तो उसे हम स्टेट लेवल की पार्टी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग, इफ़ वी टॉक अबाउट द नेशनल लेवल पार्टी, देन द कंडीशन इज अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन or assembly election in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as the national party. Okay, is recognized as the national party. So students, to become a national party means एक राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए the condition is a party must secure at least 6% of total vote value in 4 states. Okay, in 4 states, and also 4 seats of Lok Sabha. Okay, is recognized as the national party. बात समझ में आ रही है? देखिए, कम से कम कोई भी पार्टी को, किसी भी पार्टी को 6% वोट उसको लोकसभा के या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, ठीक है, उनको वो पाने होते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए, 6% वोट लोकसभा का मिल जाए या फिर 4 राज्यों के 6% वोट उनको मिल जाए और साथ ही साथ में वो 4 सीटें जो लोकसभा इलेक्शन के हैं वो उनको जीत भी लें। ओके, द कंडीशंस टू बिकम अ नेशनल पार्टी आर, फर्स्ट कंडीशन इज़ to secure at least 6% vote of Lok Sabha or state legislative assembly in 4 states. Okay, in 4 states. Second is to win at least 4 seats of the Lok Sabha. 4 seats of the Lok Sabha. ओके, लोकसभा के या तो 6% वोट मिल जाए या फिर वो 4 राज्यों से 6% वोट को पा जाए या फिर वो 4 सीटों को और फिर 4 सीटों को भी लोकसभा के जीत लें, तब जाके उसे हम नेशनल पार्टी बोलते हैं। ओके, एंड ऑन दिस बेसिस वी विल टॉक अबाउट द इलेक्शन ऑफ 2004 एंड देन आफ्टर वी विल सी who are the major policies political parties of India. So see here, dear students, now we will talk about some of the national parties of India, and these are the INC, Indian National Congress, the BJP, okay, then after Communist Party of India, Communist Party of India Marxist, then after BSP, Bahujan Samaj Party, okay, and in last SP Samajwadi Party. We will talk about these parties of India who are the national parties. Okay, so before proceeding, I want to tell you, dear students, if you are studying to a political party, then you must have to learn
the principle of the political party. Then after you must have to learn the time and date of the establishment of the political party. Okay, establishment of the political party, founder member of the political party. Okay, founder member of the political party, and also you have to learn the symbol of the political party. Okay, these are the 4 points that you must have to learn about any political party. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पढ़ने से पहले, पढ़ने के लिए उनको कम से कम आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो फाउंडर मेंबर है वो कौन है आपको जानना होगा। देन आफ्टर उसका फॉर्मेशन इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ठीक है, टाइम कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ आपको ये भी जानना होगा। प्रिंसिपल क्या है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, प्रिंसिपल क्या है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, वो भी आपको ठीक से लर्न करना होगा, ठीक है। और फिर अगर उसने कोई बिग टास्क किया हुआ है तो ये भी आपको लर्न करना होगा, साथ ही साथ में उनके सिंबल क्या है वो भी आपको जानना होगा। ओके, सो लेट्स हैव ए लुक ओवर द फर्स्ट पार्टी, दैट इज़ द इंडियन नेशनल कांग्रेस।